Hello students, welcome to your English class. Today we are going to start a new chapter, chapter 4, Althea Gibson. This chapter is about Althea Gibson and it is a biography of her. Do you know who was she? If not, then let me tell you that Althea Neal Gibson was an American tennis player and professional golfer and one of the first black athletes to cross the color line of international tennis. In 1956, she became the first African American to win a Grand Slam title. Okay? So, in this chapter, we're going to see that how she struggled and how she became the first tennis player who broke the color line of international tennis. Okay, so as you can see that in the starting of this chapter there are some new English words are given as like beard, segregation, reflexes, poverty, devoting, steadily, practiced, graduation, barrier, tremendous, blistering, consistent, triumph, medallion. Okay, what you have to do, you have to practice these words in your speaking so that you can enhance your English vocabulary. Okay, and we will check the meaning of all these words while reading out the chapter. Okay, so without wasting time, let's start the chapter. The year was 1957. Underline this date, 1957. In parts of the United States, colored people could ride only in the backs of buses and sit only in theater balconies. They were barred from many restaurants. Barred means to be deprived of, किसी चीज़ से वंचित रहना. Separating African Americans from other people was called segregation. Underline these sentences. Separating Americans from other people was called segregation. Segregation is really important term in this chapter, and we will understand this as we continued dealing the chapter. Okay, so 1957 की बात है. उस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में कलर्ड पीपल के साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था. कलर्ड मीन्स जो डार्क स्किन के होते थे, एज लाइक सांवले कलर के, जिनका कॉम्प्लेक्शन बहुत ही डार्क होता था. एंड दे वो कॉल्ड अफ्रीकन अमेरिकन्स, और उन्हें अफ्रीकन अमेरिकन्स कहते हैं. हु आर कॉल्ड अफ्रीकन अमेरिकन्स? लेट मी टेल यू दैट अफ्रीकन अमेरिकन्स आर डार्क skinned people living in the United States whose ancestors came from Africa, which means अमेरिका में रहने वाले वो लोग जिनके पूर्वज अफ्रीका से थे और जिनकी स्किन कलर डार्क होता है, विच मीन्स उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है. वो लोग सांवले या काले मोस्टली होते हैं और अफ्रीका के लोगों के स्किन का कलर यही है, लेकिन अब वो अमेरिका में रहते हैं इसलिए उनको African Americans कहते हैं. Okay, now let's understand what is called segregation and what is the meaning of segregation. Segregation was the practice of keeping African Americans separate from white Americans and treating them differently because of the color of their skin. ओके, विच मीन्स कि सेग्रीगेशन एक ऐसा चलन या मूव आप कह सकते हो कि ऐसी मेंटालिटी थी लोगों की उस वक्त कि वो लोग जो गोरे या वाइट अमेरिकन्स थे वो सांवले और जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे उनके साथ वो भेदभाव रखते थे और उनको बहुत सारी चीज़ों से डिप्राइव रखा गया था, वंचित रखा गया था. उन्हें बहुत चीज़ों को करने की परमिशन नहीं थी. जैसे अफ्रीकन अमेरिकन्स को बसों में पीछे वाली सीट पे, बैक सीट पे बैठने की परमिशन थी और थिएटर में वो सिर्फ बालकनीज पे ही बैठ सकते थे. इसी तरह से बहुत सारे रेस्टोरेंट में जाने की भी उनको परमिशन नहीं थी. तो इस तरह से पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये एक प्रैक्टिस था सेग्रीगेशन के नेम से, विच मीन्स अलगाव, यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन्स को वाइट अमेरिकन से अलग करके ट्रीट करना, डिफरेंटली ट्रीट करना, ठीक है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना. सो देयर वॉज सेग्रीगेशन इन सम टेनिस टूर्नामेंट एज वेल. तो जैसा कि आमतौर पे या डेली लाइफ में उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव किया जाता था, उसी तरह से टेनिस टूर्नामेंट यानी कि उस वक्त जितने गेम्स खेले जाते थे नेशनल लेवल पे, उनमें भी अफ्रीकन अमेरिकन्स या सांवले लोगों को खेलने की परमिशन नहीं थी और
उस वक्त सेग्रीगेशन टेनिस टूर्नामेंट में प्रिवेल कर चुका था. In this climate, one African American woman dared to be somebody. और ऐसे climate here means atmosphere. Okay? Means segregation एटमॉस्फेयर के बीच में. और इस अलगाववादी जो विचारधारा थी, लोगों की थिंकिंग थी, उसके चलते एक अफ्रीकन अमेरिकन लेडी ने ये हिम्मत की, ये जुर्रत की कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की. और इसका मतलब ये था साफ तौर पे, इट वाज वेरी क्लियर दैट शी वुड हैव टू ब्रेक द कलर बैरियर्स ऑफ टेनिस. तो इसका मतलब ये था कि उसे जो टेनिस में भी क्योंकि सेग्रीगेशन था और उसमें काले लोगों को खेलने की परमिशन नहीं थी, डार्क कलर के जो लोग थे अफ्रीकन अमेरिकन को खेलने की परमिशन नहीं थी, उसको इस रूल को, इस बैरियर मीन्स हर्डल, ओके, रुकावट या बाधा जिसको हम बोल सकते हैं, तो इसको, इस बैरियर को भी उसको तोड़ना था, ख़त्म करना था. शी वॉज prepared to do it, और वो इसके लिए बिल्कुल रेडी थी. एल्दी गिब्सन, लॉन्ग लेग्ड सुपर एथलीट फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी. लॉन्ग लेग्ड हेयर मीन्स टॉल, लंबी, वो बहुत अच्छी उनकी हाइट थी. शी वॉज रियली टॉल लेडी, ओके, एंड शी गॉट सुपर एथलीट फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी. और वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और फास्टेस्ट एथलीट भी थी. एथलीट मीन्स स्पोर्ट्स प्लेयर, ओके. तो वो न्यूयॉर्क सिटी की तरफ से खेलती थी. वुड बी ए चैम्पियन टेनिस प्लेयर. नाउ एल्दी गिब्सन जो कि न्यूयॉर्क सिटी से थी, वो अब चैम्पियन टेनिस प्लेयर बनने का सपना देख चुकी थी. एल्दी हैड द विल, underline the word will, strength and reflexes. Reflections means reflection, किसी चीज़ का प्रतिबिंब. Reflexes of a great athlete. तो एल्दी गिब्सन में उनके अंदर एक इच्छा शक्ति थी, उनके अंदर ताकत थी, स्ट्रेंथ थी, साथ ही साथ एक जो स्पोर्ट्स प्लेयर में जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो कि अच्छी चीज़ें होती हैं, जो उसको एज लाइक स्पीड और उनके तेज़ दौड़ना और बहुत ही फुर्तीले तरीके से काम करना, एक्टिव एनर्जी. सो शी वॉज जस्ट like having all the traits, all the features of a great athlete. तो उनके अंदर ये सारी चीज़ें देखी जा सकती थी, उनके अंदर ये सारे टैलेंट और स्किल्स मौजूद थे. बट टू मेक हर ड्रीम कम ट्रू शी वुड हैव टू फाइट फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट, पॉवर्टी एंड सेग्रीगेशन. लेकिन उन्हें अपना ये सपना पूरा करने के लिए बहुत चीज़ों से लड़ना भी था, जैसे कि फेलियर से. अगर वो अपना सपना पूरा करने में नाकाम हो गई तो इससे भी उन्हें फ़ाइट करनी थी. डिसअपॉइंटमेंट, और जब हम किसी चीज़ में फ़ेल हो जाते हैं तो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, तो इससे भी उन्हें लड़ना था, बाहर आना था कि इन केस ऐसा हुआ तो उनको किस तरह से फ़ाइट करनी होगी. ये सारी चीज़ वो पहले से ही जानती थी एंड शी वॉज टोटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, मेंटली एंड फिज़िकली एज वेल. And then she was having the biggest you can say fault or weakness, that was poverty. तो वो बहुत गरीब थी और गरीबी भी उनके लिए एक बहुत बड़ा हर्डल थी उनको सपने को पूरा करने के लिए, और इससे भी उन्हें फ़ाइट करनी थी. और पॉवर्टी के बाद अल्टीमेटली सेग्रीगेशन, यानी कि सबसे बड़ी चीज़ थी कि गेम में उस वक्त ब्लैक लोगों को खेलने की परमिशन नहीं थी, तो उनको ये रूल भी तोड़ना था, सेग्रीगेशन के ख़िलाफ़ लड़ना भी था. तो इस वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी थी और अपने आप को प्रूव करना था दुनिया के सामने. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड. फ्रॉम द बिगिनिंग स्पोर्ट्स केम नेचुरली टू हर. बास्केटबॉल, बेसबॉल, हैंडबॉल, but she excelled in paddle tennis. ओके, तो इस पैरा में आपको एल्दी गिब्सन की अर्ली लाइफ के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है. उसके बारे अर्ली लाइफ के बारे में पता चलता है कि स्टार्टिंग से ही, यानी बचपन से ही उनके अंदर एक स्पोर्ट्समैनशिप थी, और वो सारे जितने भी तरीके के गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, चाहे वो बास्केटबॉल हो, बेसबॉल हो, हैंडबॉल हो, उन सबको बहुत अच्छे से खेलती थी. तो वो दैट मीन्स शी वॉज रियली टैलेंटेड. ओके, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने
एक्सल्ड किस में किया, विच मीन्स कि सबसे ज़्यादा प्रतिभा उनमें किस गेम में दिखाई, वो था पैडल टेनिस। व्हाट वाज पैडल टेनिस? पैडल टेनिस क्या होता है, कौन सा गेम है? इट इज़ अ टाइप ऑफ टेनिस played in a small court with a rubber ball, okay, और ए प्लास्टिक पैडल। तो पैडल टेनिस एक टेनिस का ही टाइप है जिसमें एक स्मॉल कोर्ट में रबर बॉल के साथ और प्लास्टिक के पैडल के साथ खेला जाता है। और ये गेम में वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुकी थी, बहुत अच्छे से वो ये खेलती थी। बाय 1941 व्हेन शी वाज 13 years old, एल्दी वाज न्यूयॉर्क्स बेस्ट पैडल टेनिस। अंडरलाइन दिस दैट 13 years old, जब वो 13 years की थी, जब वो 13 साल में पहुंची, तब वो न्यूयॉर्क की बेस्ट पैडल टेनिस प्लेयर बन चुकी थी। विच मीन्स कि अब उन्हें लोग जानने लगे थे। पीपल बिगेन टू टेक नोटिस ऑफ हर। तो लोग धीरे धीरे वो लोगों के बीच में फेमस होती गई। और इस तरह से, क्योंकि वो इतने अच्छे से पैडल टेनिस उस वक्त बहुत फेमस गेम हुआ करता था और लोग उनके बारे में, उनकी गेम के बारे में, उनके टैलेंट के बारे में बातें करना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। और उन्हें धीरे धीरे लोगों ने नोटिस करना भी स्टार्ट कर दिया। ओके, लेट्स टर्न ओवर द पेज। After completing junior high school, she began devoting all her free time to tennis. हाई स्कूल करने के बाद उन्होंने पूरे डेडिकेशन के साथ अपने गेम पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। टेनिस पे ही पूरा अपना फोकस लगा दिया और उसमें मेहनत करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। हर फ्री टाइम केम आफ्टर वर्क, और ये जो फ्री टाइम उनको मिलता था वो बहुत सारा काम करने के बाद मिलता था, क्योंकि उनकी जो फैमिली थी वो बहुत ही ज़्यादा पुअर थी। द गिब्सन फैमिली वॉज रियली पुअर एंड एल्दी वॉन्टेड टू हेल्प देम। तो उनकी जो फैमिली थी, गिब्सन फैमिली थी, वो बहुत ही ज़्यादा पुअर थी और एल्दी फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करना चाहती थी। दैट्स वाई शी वर्कड इन ए फैक्ट्री एंड इन ए डिपार्टमेंट स्टोर। तो इसके लिए वो जगह जगह पे काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फैक्ट्री में उन्होंने काम किया, उसके बाद डिपार्टमेंट स्टोर में भी वो काम करती थी। शी रैन एन एलिवेटर इन ए होटल एंड इवन हैड ए जॉब ऑफ क्लीनिंग चिकन्स इन ए बूचर शॉप। और उसके बाद फिर होटल में वो एलिवेटर पे का काम करती थी, कि जैसे जो लिफ्ट होते हैं उनको मैनेज करने का काम वो करती थी। साथ ही साथ बूचर की शॉप पे, कसाई की जो दुकान होती है, वहाँ पे चिकन्स को क्लीन करने का काम भी वो करती थी। विच मीन्स शी वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क जस्ट टू फाइनेंशियली सपोर्ट हर फैमिली। ओके, and when after doing all these load of work, when she got free time, then she started practicing of a game that was tennis. Okay, but after work she was free to follow her dream. She began taking tennis lessons from Fred Johnson. Underline this, Fred Johnson उनके कोच थे। और काम करने के बाद वो फ्री टाइम में अपने सपने को, अपने ड्रीम को पूरा करने में लग जाती थी। और उन्होंने टेनिस का जो प्रैक्टिस के जो सेशंस होते हैं, लेसन, जितने भी कोचिंग लेना उन्होंने फ्रेड जॉनसन से स्टार्ट कर दिया। फ्रेड जॉनसन भी टेनिस प्रोफेशनल थे और उनका वो वन आर्म्ड थे, उनका एक हाथ नहीं था। Okay, unfortunately, she worked hard and her game improved steadily. Steadily means very fast. तो एल्दी गिब्सन ने हार्ड वर्क करने स्टार्ट कर दिया और बहुत जल्दी ही उन्होंने अपना गेम भी इम्प्रूव कर लिया। सून शी बिगेन टू सक्सीड, और धीरे धीरे उन्हें सक्सेस मिलना स्टार्ट हो गई, सफलता मिलना शुरू हो गई। एट 16 शी वोन द नीग्रो टेनिस एसोसिएशंस चैम्पियनशिप फॉर गर्ल्स। अंडरलाइन दिस सेंटेंस, at 16 she won the Negro Tennis Association's championship for girls. It could be an answer for any question, तो इसलिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि 16 की एज में उन्होंने नीग्रो टेनिस एसोसिएशन चैम्पियनशिप जो होती है गर्ल्स के लिए, उसको जीत लिया था। ये टाइटल वो उस वक्त का बहुत ही फेमस स्पोर्ट था। ओके, टू शो दैट द विक्ट्री वॉज नो एक्सीडेंट,
शी वॉन इट अगेन द नेक्स्ट ईयर। और लोगों को ये साबित करने के लिए, अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए, अपनी टैलेंट को शो करने के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि बाय लक वो जीत गई होंगी या ऐसा कुछ हो गया होगा, तो ऐसा नहीं था। शी वॉज इंडीड अ टैलेंटेड पर्सन, और इसीलिए उन्होंने मेहनत करी और नेक्स्ट ईयर दोबारा से ये चैम्पियनशिप जीत ली। ओके, दैट मीन्स इस तरह से वो अब एक एक स्टेप अपने ड्रीम को पाने का, जो उनका टेनिस प्लेयर बनने का ख्वाब था और सेग्रीगेशन इस प्रैक्टिस को तोड़ने का जो ख्वाब था, वो अब धीरे धीरे इसको अप्रोच कर रही थी, उसके पास पहुंच रही थी। एंड व्हाट हैपेंड लेटर ऑन वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, टिल देन बुक मार्क इट हियर। ओके, so in the next class we will start from the third para on the page number 32. Okay, I'll see you then. Thank you.